Welcome back. Let's now turn our attention to what's been happening in the state of Uttar Pradesh. It was a day of widespread violence that we saw across the state in various areas. Elections for the block chairman in Uttar Pradesh, that has been marred with violence. Visuals we're getting you from 5 different cities of UP. Gunshots fired, vehicles have been vandalized, stones have been pelted. The police was even forced to lathi charge in order to try and bring the situation under control. Supporters of different parties ended up clashing with each other. The visuals there from all of these places, Sitapur, Gorakhpur, Pilibhit, Bulandshahr, all on your screens at this point in time. And I want to take you through what happened in each of these places. So let's begin with Sitapur, where gunshots were fired there during the nomination process for the block chairman elections. Meanwhile, in Gorakhpur, during the filing of the nomination for the block chief election, stones were pelted at BJP's nominees' convoy. Supporters were beaten up. Half a dozen vehicles were also damaged. That's in fact what happened in Gorakhpur. Meanwhile, in Pilibhit, BJP supporters clashed with an independent candidate. That's what happened in Pilibhit. There was violence and complete chaos there as well. The independent candidate and the BJP supporters ended up clashing with each other. Moving on to Bulandshahr, where we saw similar scenes where 2 BJP factions in fact clashed just outside the nomination center. In fact, clashes erupted between 2 groups of the past and the current candidates, and the police had to even do lathi charge to try and bring the situation under control. Meanwhile, in Lalitpur as well, we saw what happened there in terms of the violence. BJP leader openly snatched the nomination papers of an SP candidate. This happened in full public view near the entrance of the block office, and that too in the presence of the police. So this is the situation there across various parts of the state at this point in time. Let me in fact go across to Adarsh Singh, who's joining us on the phone line for more details. Adarsh, आप हमें बता सकते हैं कि किस हद तक ये वायलेंस हुआ इस बार? देखिए, न सिर्फ सीतापुर में बल्कि गोरखपुर की बात करें, बस्ती की बात करें, श्रावस्ती की बात करें, देवरिया की बात करें या फिर जौनपुर की बात करें, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर आज 825 ब्लॉकों के लिए जो ब्लॉक प्रमुख है उनका नामांकन होना था। और मैं आपको बता दूं कि 10 जुलाई को इनका चुनाव होना है और इसमें आज ही नामांकन के दिन बहुत सारे ऐसे ब्लॉक हैं इन जिलों में जहां पर बड़ी संख्या में मारपीट हुई है। और ना सिर्फ इसमें जो लोग नामांकन करने जा रहे थे वो शामिल हैं, बल्कि उनके तमाम जो समर्थक थे वो भी शामिल हैं। सबसे बड़ी जो घटना हुई है वो सीतापुर में हुई है, उत्तर प्रदेश के। और ये सीतापुर में जो 2 पक्ष के लोग नामांकन करने जा रहे थे, कहा जा रहा है कि उनके समर्थक आपस में भिड़ गए और बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को ना सिर्फ लाठीचार्ज करना पड़ा बल्कि आंसू गैस की गोली भी छोड़नी पड़े। और इतना ही नहीं, उन्हीं समर्थकों में से किसी एक पार्टी की तरफ से वहां पर गोलीबारी भी हुई है। कहा जा रहा है तकरीबन 12 राउंड गोलियां चली हैं, जिसमें से 3 लोग घायल भी हुए हैं। हमारी जो पुलिस सूत्रों से बातचीत हुई है उनके मुताबिक अभी फिलहाल की जो स्थिति है उसे पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया है। और किन लोगों ने गोलियां चलाई, आखिर क्या कारण थे और क्या उसके पीछे कोई और रणनीति थी या कोई और प्लान था, इन सब की तहकीकात अभी की जा रही है। और आज 10 जुलाई को जो नामांकन होना था उसके संबंध में पुलिस मुख्यालय ने आदेश भी जारी किए हैं। अब चूंकि आज के दिन जो घटना हुई है इसको देखते हुए जो 10 जुलाई को जिस दिन चुनाव होना है उस दिन को लेकर भी पुलिस की तरफ से नए निर्देश जारी किए गए हैं। और माना जा रहा है कि आने वाले 10 जुलाई को ऐसी कोई घटना ना हो, उससे बच सकें, इसको लेकर भी पुलिस की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। और इसमें कई ऐसे जिले हैं जो संवेदनशील भी हो सकते हैं। और ये भी तय किया गया है पुलिस की तरफ से कि 100 मीटर की जो बैरिकेडिंग होगी उसके अंदर कोई नहीं आएगा। 10 तारीख का जो चुनाव होना है और बैरिकेडिंग के स्टार्टिंग में ही पुलिस के और मजिस्ट्रेट जो होंगे वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल आदर्श, जैसे कि आपने कहा कि ये तो सिर्फ नॉमिनेशन का दिन पे इतना सारा वायलेंस हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जो चुनाव का दिन होगा उस दिन के लिए बहुत डिप्लॉयमेंट बढ़वानी होगी और पुलिस को एकदम अलर्ट रहना होगा उस समय।
बिल्कुल मैं वही आपको बता रहा था कि पुलिस की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें से ये कहा गया है कि चुनाव के दिन जो प्रत्याशी हैं उनको छोड़कर कोई भी व्यक्ति 100 मीटर के दायरे में नहीं आएगा और गेट पर ही सभी लोगों की चेकिंग होगी। पुलिस की तरफ से भी ना सिर्फ उनके जवान होंगे बल्कि मजिस्ट्रेट स्तर का एक अधिकारी वहां पर होगा। साथ ही साथ जिला निर्वाचन अधिकारी जो होंगे वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे और लगातार जो महिला पुलिस बल है उसे भी वहां पर रखा जाएगा। और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे, वायरलेस सेट, टेलीफोन और दूसरी जो चीजें हैं उससे लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो कुल मिलाकर आज के नामांकन के दिन की घटनाओं को देखते हुए यूपी पुलिस चाहती है कि किसी भी तरीके से चुनाव के दिन कोई कोर कसर न रह जाए और ना ही किसी भी तरीके की हिंसा हो। इसकी पूरी कोशिश और पूरी तैयारी यूपी पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल आदर्श, हमसे सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। ऑफ कोर्स दोज आर सम डिटेल्स हियर। ऑब्वियसली दिस वाज जस्ट द नॉमिनेशन डे एट दिस पॉइंट इन टाइम। द इलेक्शन इज गोइंग टू बी ऑन द 10th of July, so deployment as per Adarsh is going to be increased for the actual election day. So obviously at this point in time today saw widespread violence across various parts of Uttar Pradesh, including Bulandshahr, Gorakhpur, Sitapur. All of these places saw violence. The police had to resort to lathi charge and even fire shots to try and bring that entire crowd under control. Let me in fact go across to Rakesh Tripathi of the BJP who's joining us on the phone line. राकेश जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका क्या रिएक्शन है ये जो हम आज देखने को मिला, इतना वाइड स्प्रेड वायलेंस और वो भी सिर्फ नॉमिनेशन के दिन पर? ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जब तक सत्ता में रही है उसने सत्ता का व्यापक दुरुपयोग करके पंचायत के चुनाव को जीता है। लेकिन इस बार चूंकि वो सत्ता नहीं है उनके पास और वो चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, तो हताशा में आकर के वो लगातार हर जगह पर मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रशासन उत्तर प्रदेश में इनको बिल्कुल उपद्रव करने की छूट नहीं दे सकता है। कठोरता से कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। ये सारे लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। जो लोग इस तरह की घटना करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हार की हताशा है और इसी नाते ये उत्तर प्रदेश की सरकार को इस चुनावों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन राकेश जी, आप समाजवादी पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पे बीजेपी के सपोर्टर्स ने, इनफैक्ट ललितपुर में बीजेपी के लीडर ने स्नैच कर लिया जो एसपी के कैंडिडेट थे उनका नॉमिनेशन पेपर्स, और बुलंदशहर में भी दो बीजेपी के फैक्शंस एक दूसरे से लड़ने लगे। तो बीजेपी के सपोर्टर्स भी इस वायलेंस में शामिल थे। देखिए, कहीं पे भी अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी अगर कहीं कोई हिंसा की घटना की होगी तो निश्चित तौर पर पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और हम इसको भारतीय जनता पार्टी या किसी राजनीतिक दल की से परे होकर के, ये लोकतंत्र का उत्सव होता है। चुनाव अगर कहीं भी किसी भी तरह से कोई उत्सव में रंग में भंग डालने का काम कर रहा है, अगर कोई वायलेंस करने का काम कर रहा है, तो कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अलग अलग स्थानों पर आपस में ही भीतरघात उनकी पार्टी में हुई है, उनके पास लीडरशिप इस तरह की जो है वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है। उनके अपने पार्टी के प्रेसिडेंट ने तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को चुनाव के दौरान ही हटाया है, केवल इसलिए क्योंकि वहां भीतर भयंकर अनुशासनहीनता है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं, और इसके कारण ही जगह जगह पर वायलेंस समाजवादी पार्टी के लोगों ने आपस में भी किए। ऑलराइट राकेश जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ऑब्वियसली the deployment will have to be increased, security will have to be increased on the actual day of the election, which is 10th of July.